students, very good morning. So we were doing congruency and third trigees page number 144 was going on. Let us continue. First figure we have discussed and the second pair of figures are to be taken into consideration. Okay. So you are having the pair of triangles, triangle ABC. This is 35 degree. This is 3 centimeter. This is 2.5 centimeter. And another triangle is PQR, in which this is 3, this is 2.5, and this angle is 35 degree. And you need to tell whether they are congruent by SAS congruency or not, and you have to write them in symbolic form as well. First of all, though, you have to see it very carefully. Then in two triangles, the numerical values, whether they are the same or not. Numerical value same है. 3 है, 2.5 angle. That means 50 to 70% हमारे chances हो जाते हैं इनके congruent होने के when the numerical values are the same. Right? So हम इसको लिखते हैं here AC is equal to RP is equal to 2.5. तो पहले दो sides बराबर हो गई. Then BC is equal to PQ 3 each. ठीक है? BC is equal to PQ 3 each. Now see the triangle ACB equal to triangle angle RPQ, and that is 35 degree. ACB is equal to RPQ is equal to 35 degree each. तो आप एक मिनट इसको अगर देखें, हम ट्रायंगल ACB बन रहा है ना, इधर अगर हम लेटर्स को उठाएं ACB कॉन्ग्रुएंट टू, इधर से अगर लेटर्स उठाएं RPQ, देखिए जरा इस तरह से नेमिंग क्या ठीक रहेगी. AC is equal to RP, first thing is satisfied, they are sitting on the first second place. BC is equal to PQ, they are sitting on the second third place, and ACB, this center, is equal to RPQ, this center. That means the naming we have done, it is quite okay. So they are congruent by SAS rule. Right? Third part you will do yourself. Let me start with the fourth part of the same. Yes, Karthik? Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, बेटे. मैम जो आपने आज नेमिंग कराई है ट्राइंगल्स की, कल आपने करवाई थी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP. मैम वो ठीक है? ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए बेटे. जो चीजें इक्वल है वो आमने सामने बैठी होनी चाहिए. ओके मैम. ठीक है. यस. चलो, थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. आई एम डिस्कसिंग द फोर्थ पार्ट. देखना इस चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइजेज हैं. देखना एक बार बुक में. ओके, चलिए. फोर्थ पार्ट आई एम डिस्कसिंग. P, Q, R and S. This is 30 degree. This is 30 degree. This is 3.5 and this is 3.5. Now this seems to be little difficult because the chapter is of triangles congruency and it seems to be a quadrilateral. So हमें इस quadrilateral में से दो triangles ढूंढने हैं. कौन से दो triangles आपको दिख रहे हैं? One triangle is above PR, another triangle is below PR. तो हम देखते हैं. हम लिखेंगे PQ. दूसरे ट्राइंगल में से अगर बात करें SR के इक्वल है 3.5 each. PQ is equal to SR 3.5 each. Then this angle QPR
इज इक्वल टू एंगल PRS, नीचे वाले ट्रायंगल 30 डिग्री ईस्ट। देन एक साइड हमें और चाहिए, इफ वी वांट इट टू गो विद SAS congruency, then along with one side and one angle, one more side is needed, and that side you can see, अगर मैं ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल लूं, तो ये जो साइड PR है ये कॉमन है दोनों को, दोनों की साइड है PR इक्वल टू PR, कॉमन साइड। दिस इज कॉमन सेंस, हमने कॉमन सेंस से कॉमन साइड ढूंढ ली है ना, हमें इतनी कॉमन सेंस कि हम कॉमन साइड ढूंढ सके, सब में है। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड और एक एंगल आ गया, हम नाम रखते हैं अब ट्रायंगल PQ से R कॉन्ग्रेंट टू SRP। देखें क्या हमारी ये नेमिंग जस्टिफाई कर रही है, PQ SR के इक्वल, बिल्कुल ठीक। दूसरा PR PR के इक्वल, नहीं ये गलत हो गया, तो हमें यहाँ पे R और S को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि PQ RS के इक्वल तब भी रहेगा, PR इक्वल टू RP, ये ठीक है। एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल P फर्स्ट पे है, इधर एंगल R फर्स्ट पे है, तो नेमिंग ये वाली जस्टिफाइड होगी। तो PQR is congruent to RSP by SAS rule. This is third trisis, page number 144. Let us start with question number 4. In figure, AB and CD bisect each other at O. AB and CD bisect each other at O. Bisect each other at O. First part, state three pairs of equal parts in triangle AOC and triangle BOD. Bisect each other at O का मीनिंग पहले समझे हम, कि जब दो लाइनें आपस में मिली और O पॉइंट पे उन्होंने एक दूसरे को से PQ एंड RS बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि जिस पॉइंट पे दो लाइंस मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे उनके दो हिस्से आपस में बराबर हैं। OR इज इक्वल टू OS, OP इज इक्वल टू OP, हिस्से आपस में आधे आधे बराबर है। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन है हमें दैट AB बाइसेक्ट CD, तो इसका मतलब ये है कि AB के दो हिस्से आपस में बराबर हैं आधे आधे, O के राइट और लेफ्ट पे हैं जो, एंड CD के दो हिस्से जो O के राइट और लेफ्ट पे हैं आपस में बराबर। तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स लिखने हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, AO OB के इक्वल, एंड दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है। ठीक है, OC is equal to OD, this is also given to us, OC is equal to OD, this is also given to us. OC is equal to OD given to us. अब एक चीज और हमें चाहिए जिससे कि 3 इक्वल पार्ट्स ट्रायंगल्स के आ जाए, कोई बता सकता है तीसरी चीज? एनीवन? जब दो साइड्स आ गई एक एंगल चाहिए हो, तो कोई बता सकता है कोई एंगल जो इन दो ट्रायंगल्स में इक्वल बन रहा हो? यस कौरिश? मैम आई थिंक ओ, मैम जैसे जो वहां पर जो ओ यहाँ पर जो दो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैम वो वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों साइड्स दोनों तरफ एंगल बन रहा है एक, उसको हम कौन उस सा एंगल एंगल को ले बोलते हैं? सकते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? मैम लाइक AOC।
नहीं, आप कह रहे हो and EOC DOB. BOD के इक्वल है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स दे आर नोन एज, इनको कैसे एंगल्स बोलते हैं? In case of intersecting line, vertically opposite angles are equal. यानी था lines and angles में. Yes, ma'am. So we can write angle AOC इधर से is equal to BOD, and the reason is vertically opposite angles. In case of intersecting lines, they are always equal. So these are the three equal parts. पहला question, पहला fourth question का first part था write the three equal parts. Second part for this question is, which of the following statements are true? First statement, AOC congruent to DOB, क्या ये चीज हमारी जो है वो मीनिंगफुल है? देखिए जरा, इसके अकॉर्डिंगली AO DO के इक्वल आ रहा है, जबकि हमारा AO OB के इक्वल है। पहली बात ही गलत होगी, दिस इज नॉट मीनिंगफुल as corresponding parts are not equal. ये तो कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं आ रहे, तो हाउ वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रेंट? पहली बात तो हमारी मीनिंगलेस होगी। सेकेंड बात है हमारे पास, सेकेंड, इस ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD? देखो जरा, अब इसमें AO OB के इक्वल है, बिल्कुल है। OC OD के इक्वल है, बिल्कुल है। AOC BOD के, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे दिस इज ट्रू as here two corresponding sides and one angle are equal. Yes, Karthik? यस मैम। मैम जो एक बारी फर्स्ट स्टेटमेंट आपने कराई वो एक बारी दोबारा समझा दो, कैसे कराई है? हाँ, कैसे इनवैलिड हुई है? जैसे ये है हमारे पास AOC एंड DOB, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें तो हमारा AO DO के इक्वल बन रहा है ना? यस मैम। जबकि हमारा AO तो OB के इक्वल है। यस मैम। पहली बात ही गलत हो गई, सो दिस इज फॉल्स। ओके मैम। अब आओ जरा पेज 145। पेज 145 के हम ट्राइडीज करने लगे हैं। अब हमने काफी ट्राइडीज किए, दोस वर बेस्ड ऑन ट्रिपल एस रूल। we did some tridies which were based on SAS rule। ये भी हमारे ट्राइडीज खत्म हो गए SAS rule के भी। now we will do some tridies which are based on angle side angle, that means two angles and one side is included between the angles, ASA rule। चलिए, he says first try this, if there is triangle MNP, if there is triangle MNP, then which side is included? ये 1 mark question है सारे। Which side is included between angle M
and angle M. M and N के बीच में कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है? जहां पे M and N बैठे हैं, जिनपे दोनों, वैसे तो N इसको टच कर रहा है और M भी इसको टच कर रहा है, बट कॉमन साइड देखनी है जो दोनों जिसको दोनों टच कर रहे हैं. तो कॉमन साइड इज दिस, जिसको एंगल N और M दोनों टच कर रहे हैं. तो इसका मतलब एंगल M और N के बीच में कौन सी साइड इंक्लूड है? साइड एंगल. It is included between angle M and angle N. So second try this. Next देखो, given that angle D is equal to angle M, angle F is equal to angle P. Given angle D is equal to angle M and angle F is equal to angle P, what information is needed to establish the congruence? Draw a Rotan figure and then try. कहता पहले एक आप रफ सी फिगर बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली बताओ कि अगर ASA रूल से, वैसे हमें पता चल रहा है कि दो एंगल्स हैं तो ASA रूल ही होगा. इसको कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, राइट? तो DF है तो इससे मैं ट्राइंगल DEF बना. MP है तो हम बना लेते हैं MNP. These are the Rotan figures, मतलब रफ फिगर्स. DEF से मैंने DEF ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया और MP से मैंने ट्रायंगल MNP लिया. देखें जरा, D एंगल M एंगल के इक्वल है, F एंगल P एंगल के इक्वल. तो अगर आप इसको ASA से कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हो तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है. The additional information that is needed, that should be DF is equal to MP. ये साइड आनी चाहिए. एंगल दो हैं वो आपने मार्क कर लिए और उन दो एंगल्स के बीच में जो साइड इंक्लूड है. So we should have DF is equal to MP. Additional thing that is needed. ठीक है? So this is additional, you can say, part which is needed for the triangles to be congruent by ASA. Roughly, we have made triangle with DF, we have made DEF, with MP, we have made MNP. Accordingly, these two angles, corresponding angles are equal. So sides which should be equal are DF and M. Right? ऐसे क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क में आएंगे. Again, the same thing that you are given some triangle. Say which of the triangles will be congruent and write them in symbolic form. हमने पहले ट्रिपल एस के लिए किया सिंबॉलिक फॉर्म, देन हमने SAS के लिए किया, अब हम ASA के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रायंगल्स को लिखें. Let us start. Question number 3. Triangle is like this, ABC. This is 40, this is 60, and this is 3.5. Then there is another triangle, DEF. This is 60, this is 40, and this is 3.5. 60, 40, 3.5. तो अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें, एंगल A और इसका एंगल F, they are 40 degree. Angle B and angle E, they are 60 degree each. Side AB is equal to side EF.
3.5 each. AB is equal to EF 3.5 each. तो रूल आपको दिख रहा है, दो एंगल्स एक साइड, रूल तो बनेगा ASA. With two angles one side, the rule that it will form, that is ASA. तो अगर हम इस ASA रूल की बात करें तो ट्राइंगल्स की नेमिंग करें. इधर हमारे पास ट्राइंगल ABC बन रहा है, हम लिख देते हैं ABC. फॉर अ टाइम बीइंग इफ आई एम राइटिंग DEF, देखिए जरा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. हमारे पास A कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए F को, नहीं D को कर रहा है, तो F A के आगे आना चाहिए. A कॉरेस्पॉन्ड किया F. B कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है E को, तो B के आगे E आ. एंड यहाँ बचा D. A के आगे F, B के आगे E और साइड AB के आगे FE. बिल्कुल ठीक. So this should be the naming of the triangle for two triangle to be congruent by ASA rule. Right? Yes, Karthik. यस मैम. मैम जिस इस क्वेश्चन में उन्होंने पहली ASA दिया हुआ था कि इस प्रॉपर्टी से बताओ कि वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसमें एंड में हमने लिखना है कि बाय ASA रूल. हाँ हाँ मैंने लिखा तो है ASA rule. Okay. And in paper it may be possible that property mention ही ना हो. उन्होंने पूछा हो कि say that whether these two triangles are congruent or not. If they are congruent, then by which rule, and also write them symbolic. तब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा रूल बन रहा है. तो नेचुरली दो एंगल्स और एक साइड से ASA ही बनेगा. राइट? यस मैम. चलिए सेकंड पार्ट. थर्ड ट्राइडीज का सेकंड पार्ट. It is triangle PQR. (90°), 50°, 3.3 centimeter. Another is triangle DEF. 90°, 50°, 3.5. देखना जरा PR पे 3.3 है कि 3.5 है. देखना जरा मिसप्रिंट तो नहीं है. यस कार्तिक. यस मैम. मैम PR पे 3.3 है. बस सीधी सी बात है, ये नहीं होने वाले कॉन्ग्रुएंट क्योंकि एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहे हैं, बट द साइड इज नॉट इक्वल. मोरओवर दिस साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स. दोनों चीजें हैं ना, तो साइड एंगल्स के बीच में इंक्लूड हो रही है और इक्वल भी नहीं है. हाँ जी गौरिश. मैम वो मैंने बताने के लिए किया था हैंड रेस. चलो. So you will write here two corresponding angles are equal. Two corresponding angles are equal, but the given sides are not equal. So the triangles are not congruent. Triangles are not congruent. Right? Next question. Third part you will do yourself. I'm starting with fourth part of the same question. Fourth part. Figures are like this. A, B, C, B. Angle 30°. This is 30°. This is 45°. And this is then 45.
तो एक्चुअली इसमें हम अगर थोड़ा सा अलग करके देखें, मैं ऐसे दो ट्राइंगल्स अलग ले, वन इज ट्राइंगल ABD and from the another side I am taking triangle ABC. ये जो एंगल A है, इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं 45 एंड 30, तो ये हुआ 70 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री ऐड करके, एंड एंगल B इज 30, ठीक है। और इधर वाले ट्राइंगल में ये जो B है, दिस इज 45 प्लस 30, दिस इज 75 डिग्री, और एंगल A इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स इस तरह से मैंने बीच में से निकाले और उनके एंगल्स को जज करने की कोशिश। अब ये कॉन्ग्रेंट होने के चांसेस बढ़ गए, क्यों? क्योंकि दो एंगल्स इक्वल आ गए, और जिस साइड पे दोनों एंगल्स बैठे हैं AB एंड AB, that is common to both of the triangles, they are similar to both of the triangles, so we can go with the ASA rule. So I am writing here एंगल DAB, पूरा एंगल लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं A लिखती हूँ तो आप इसके A से भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो एंगल DAB एंड इधर इसका एंगल CBA, सेंटर में एंगल, जहां पे एंगल बनता है वो सेंटर पे आना चाहिए, बाकी की चीजें आसपास। यहाँ पे B पे एंगल बन रहा है, B सेंटर में, CA आसपास, 75 डिग्री ईच, 75 डिग्री ईच। और उधर का एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, DBA, इधर 30 है A, CAB, दिस इज 30 डिग्री ईच। दो एंगल्स हो गए। नाउ साइड AB कॉमन साइड, हमने अपनी कॉमन सेंस से देखा कि दे आर द कॉमन साइड, राइट। सो दो एंगल्स एक साइड, ASA रूल से। ट्राइंगल्स का नाम अगर मैं लिखूं तो मैं इधर लिख लेती हूँ जो पहला मेरे पास आ रहे हैं, जैसे डिजिट्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं। सो आई एम राइटिंग ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट टू, इधर मैं CBA लिख रही, देखते हैं बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग है। DAB CBA, देन DBA CAB, थर्ड नंबर पे DBA एंड CAB थर्ड नंबर पे, तो ये भी ठीक है। साइड AB शुड बी इक्वल टू साइड AB, दिस इज AB इक्वल टू AB, इसका मतलब हमने नेमिंग जो है बिल्कुल परफेक्टली फाइन, नेमिंग इज परफेक्टली फाइन। यस कार्तिक। यस मैम। मैम जो नेमिंग की है एक बार आप दोबारा बता दो कि कैसे की है, मैंने मैम तो मेरे को समझ नहीं रैंडमली इसका ट्रायंगल का नाम लिख लिया DAB, सीरियल ऑर्डर में जो लेटर्स आते हैं मैं उस हिसाब से उठा लेती हूँ DAB, और इधर में सीरियल ऑर्डर में CBA आ रहा था, मैंने लिख लिया। अब मैं देखने चेक करने लगी हूँ कि क्यों वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो DAB सेंटर पे है A, CBA सेंटर पे है B, पहला ओके। देन DBA थर्ड नंबर पे एंगल है, CAB भी थर्ड नंबर पे एंगल है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्ड करती है। साइड AB सामने बैठी होनी चाहिए, बिल्कुल सामने बैठी है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस इज ओके। ओके मैम। हाँ जी साविया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस मैम। मैम एक टाइम वन बाय वन, साविया यू आस्क। ओके मैम, जो फोर्थ पार्ट में जैसे आपने कराया एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, मैम हम इसको सिंगल सिंगल लेटर में भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एक्चुअली मैंने सिंगल लेटर में इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका एंगल A अगर आप लिखते हो, इसका एंगल A तो 75 बन रहा है और उधर से एंगल A, इसका कंफ्यूजन ना हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने पूरी नेमिंग की है। हाँ जी गौरीश, नाउ यू आस्क। यस मैम। मैम मेरी ना रिसेंटली थोड़ी 5 मिनट से ना कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैम एक टाइम आप दोबारा से ये फोर्थ पार्ट रिपीट कर दो।
हाँ मैंने ट्राइंगल दोनों अलग करके उठा लिए, DAB अलग से बाहर ले आई और CBA अलग से बाहर ले आई, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ये 45 30 मिला के बन गया इसका एंगल 75, ठीक है गौरीश। और इसका एंगल 45 एंड 30 मिला के बन गया 75, वो 30 30 पे गई थी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख लो, DAB इक्वल टू CBA 75, DBA इक्वल टू CBA sorry DBA is equal to CAB 30 degree and ABAB common side. So triangles they got complete, right, by ASE. Is it okay, Gorish? So we'll continue tomorrow. Do send your notebooks for checking.